جناب علی، اچھا یہ بڑا یہ حسن اتفاق بھی ابھی ہم جو پچھلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے کر رہے تھے کہ پڑھو، اور یہ اور ہمارے جو یہ نیکی سیگمنٹ میں بھی آج جو آرگنائزیشن ہے وہ ریڈ فاؤنڈیشن ہی ہے. اور جب بھی تعلیم سے متعلق کچھ چیزیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اقرار میں یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے، صحت کی، امپلائمنٹ کی، ہر شعبے کی. تعلیم کی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اس لیے کہ یہ ایک مسئلہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. تعلیم ہے معاشرے میں تو پھر آگاہی ہے تو صحت کے بھی مسائل کم ہے، تعلیم ہے تو جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہیں تو غربت بھی کم ہے. تو ایک بنیادی مسئلہ ہے. اور جاب ملنے کے بعد جن مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک شخص بہت سارے ویسے مسائل کو کیٹر کر سکتا ہے. ایسے ہی تو اور یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس ادارے کی آج ہم بات کر رہے ہیں میں اور وسیم بھائی دونوں کا بڑا ایک قلبی تعلق ہے اس ادارے سے، اور ہم وہاں بارہا جا چکے ہیں، خود اس ادارے کا کام دیکھ چکے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اور بالخصوص آزاد کشمیر میں. بہت شاندار، بہت زبردست. ہم بات کر رہے ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کی. الحمدللہ اب تک سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے اس ادارے سے تعلیم حاصل کر کے زندگی میں کہیں نہ کہیں نمایاں کردار سر انجام دے رہے ہیں. اور کیا شاندار اور خوبصورت ماڈل ہے، اس پر ہم ذرا آگے چل کر بات کریں گے. لیکن اپنی نوعیت کا ایک واحد اور منفرد ادارہ ہے جو کہ بچوں اور بچیوں کو تعلیم فراہم کر رہا ہے. بالخصوص زلزلے کے بعد سے چونکہ آزاد کشمیر میں اس کی اور زیادہ ضرورت تھی. 400 کے قریب سکول الحمدللہ اس وقت کام کر رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں. 1,18,000 طلباء اور طالبات اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ریڈ فاؤنڈیشن کے مختلف اداروں میں ہمیں جانا ہوا، ہم نے اس کی عمارت دیکھی، وہاں کا جو کلاس رومز ہیں ان کا انوائرمنٹ دیکھا، جو بچے بچیاں وہاں پڑھ رہے ہیں. تو بڑی شاندار بات ہے. ابھی ذرا ہم بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ ایسے شاندار ادارے پاکستان میں موجود ہیں. جس طرح وسیم بھائی نے بھی کہا کہ باقی تمام عبادات بہت مقدم، بہت محترم، ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے حج کا فریضہ ایک بار سر انجام دے دیا ہے یا اگر آپ نے عمرہ ایک بار کر لیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ بچیوں کی تعلیم پر وہ پیسے خرچ کریں. اس لیے کہ اگر وہ بچی یا بچہ پڑھ کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو عمرہ کروا سکتا ہے، کتنے لوگوں کو حج پر بھیج سکتا ہے. تو یہ جب ہم وہاں گئے تھے ریڈ فاؤنڈیشن، وہاں بچوں اور بچیوں سے ہماری ملاقات ہوئی، بڑا دل بڑا ہوا الحمدللہ. بہت شاندار، بہت شاندار، بڑی خوشی ہوئی. ہمارے ساتھ اس وقت محمد صدیق خان صاحب موجود ہیں، آپ جی ایم ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کے. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے. اچھا میں جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ریڈ فاؤنڈیشن کے ماڈل نے کہ کس طرح سے کن بچوں سے فیس لی جاتی ہے یا کن بچوں کو فیس سے استثناء حاصل ہے، کس طرح سے وہ بچے جو یتیم ہیں جن کی کفالت ایک طرح سے تعلیم کے معاملے میں ریڈ فاؤنڈیشن کر رہا ہے، ان کو اور ان کے ٹیچرز تک کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بچے فیس ادا نہیں کر رہے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ اور تعلیم کے معیار میں ان کو کسی طرح کی کمی کا سامنا نہ ہو. تو یہ ذرا ماڈل ایکسپلین کیجیے گا پلیز. اقرار بھائی آپ کا بہت شکریہ، وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ اپنے ہمارے کام کو دیکھ بھی چکے ہیں اور انڈورس بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. دیکھیے ریڈ فاؤنڈیشن کا ماڈل باقی ماڈل سے ذرا ڈفرینٹ اس سینس میں ہے کہ یہ ایک سیلف سسٹینیبل ماڈل ہے. جی صحیح. اس میں آپ کی ہم اپنی رننگ کاسٹ میں سیلف سسٹینیبل ہیں. کیا بات ہے. لیکن ہم جو ہمارے اورفنز اور نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم اسپانسر تلاش کرتے ہیں. صحیح. ہم عمارتوں کی تعمیر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے لیے تو اس کے لیے ہم اپنے ڈونر سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 13,000 یتیم بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ 16,000 کے قریب ماشاءاللہ یتیم بچے ہمارے سسٹم سے فارغ ہو چکے ہیں. کیا بات ہے. اور اس میں اقرار بھائی ایسا بھی ہے کہ ایک بچہ جس کی والد بھی نہیں تھا، والدہ بھی نہیں تھی اور وہ نانا کے پاس پڑھ رہا تھا لیکن وہ میڈیکل میں کنگ ایڈورڈ سے فارغ ہوا. اللہ. تو یہ ریڈ کی وہ اچیومنٹس ہیں. بچے جو ہے نا کیا بات ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے رمضان کی جو شان ہے نا وہ اصل میں وہ شان بیسیکلی قرآن کی وجہ سے ہے. جی بے شک. کہ قرآن اس میں اترا تھا اور قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے. تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کے بغیر آپ دیکھیے پاکستان میں نا اس وقت 2.5 کروڑ بچے، 2.5 کروڑ بچے اس وقت بھی ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی. یہ دنیا کے کچھ ممالک کی آبادی سے زیادہ ہے. 180 ممالک کی آبادی سے دنیا میں بتاؤ. تو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کیسے کر سکتے ہیں، پراسپرٹی کی بات کیسے کر سکتے ہیں. دنیا کے 180 ممالک کی آبادی سے زائد پاکستان میں اتنے بچے ہیں جو پڑھ نہیں رہے، جس سے بنیادی چیز کوئی ہے ہی نہیں، پڑھی نہیں، تعلیم ہی اصل نہیں. اور ہماری ترجیح نہیں ہے یہ. جی ترجیح نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں نا کہ لوگوں کو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ،
मतलब इंडिविजुअली इदारे के तौर पर पाकिस्तान में चैरिटी के लिहाज से पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का, ये भी एक बड़ी ख़ास बात है। लेकिन जो है ना कि आप लोगों को मछलियाँ पकड़ के देने की बजाय अगर आप मछली पकड़ना सिखा दें, ये है वो काम जो करने का है। सही बात। पाकिस्तान के जो अहले खैर है ना, उनको जब वो चैरिटी की साइड पे जाए ना, तो वो इस पे देखें कि उनकी चैरिटी इटसेल्फ सस्टेनेबिलिटी कितनी क्रिएट कर रही है और सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वसीम भाई भी चूँकि वहाँ तशरीफ़ ले गए, मैं चाहूँगा आप अपना एक्सपीरियंस। और मैंने मतलब पाकिस्तान से बाहर भी कुछ मुख्तलिफ फंड रेजर्स में भी शिरकत की फाउंडेशन की, तो वाकई बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हमेशा अपना साथ देते हैं, और री फाउंडेशन के हवाले से उनकी भी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत ही अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज में, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में स्कूल और इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं कि इंसान देख के खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाता है। और तालीम ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कोई खैराती लगता है या कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें भी मैं एक बहुत ख़ास बात आप शेयर करूँगा। जैसे हमारे यहाँ चैरिटी स्कूल्स का एक कंसेप्ट ये है कि चैरिटी जो स्कूल्स होते हैं उसमें बहुत ही आम मतलब और गरीब तबका और वो पढ़ता है। हमारे स्कूल्स में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के 2 बेटे पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्या आज़ाद कश्मीर के जो साबिक सीनियर वज़ीर हैं, क्या बात, ज़बरदस्त, उनके 5 बच्चे हमारे तालीमी इदारे से फारिग हुए हैं। ये मेयार की गारंटी है ना एक तरह जी। तो ये है। अच्छा, अब उसमें एक बात ये है ना कि एक बच्चा ऐसा है जो ऑर्फन है, नीडी है, वो वज़ीर आज़म के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ता है जी, और किसी को नहीं पता कि ये ऑर्फन है या नीडी है। इवन टीचर्स तक को, इवन टीचर्स को भी नहीं पता। अच्छा, वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है, जिंदाबाद। इसमें जरा मजीद बात करेंगे, जिस तरह आपने कहा कि बच्चे जिस तरह से एक्सेल कर रहे हैं रीड फाउंडेशन के, ऐसी ही एक एग्जांपल हमारे साथ दानियाल जिलानी मौजूद है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी माशाल्लाह इस वक्त, और रीड से ही फारिग तहसील है। इनकी दास्तान भी सुनते हैं। कैसे दानियाल भाई? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब क्या कहानी है ज़िंदगी की, रीड से क्या ताल्लुक़ है आपका? और सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ARY डिजिटल इकरार भाई, आपका और वसीम भाई बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर हैं कि आपने आज रीड फाउंडेशन स्कूल को अपनी स्क्रीन की जीनत बनाया। सर मैं 8th क्लास में था कराची में, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे शिफ्ट होना पड़ा आज़ाद कश्मीर में। तो उस वक्त रीड फाउंडेशन स्कूल ऐसा था, क्योंकि मैं कराची से तालीम हासिल कर रहा था, तो कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं था कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। तो वाहिद एक रीड फाउंडेशन स्कूल ऐसा था कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया, और अब यकीन जाने कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम का मेयार था वो कराची के एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के जो स्कूल था उससे मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा था। और वहाँ पे मुझे एक लीडरशिप स्किल्स पे जो काम किया जाता है और जो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग पे काम किया जाता है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के जो स्कूल्स हैं, बड़े बड़े नाम के स्कूल हैं, वहाँ पे काम नहीं किया जाता। और फिर मैंने वहाँ पे 2 साल पढ़ा और फिर मैं वापस कराची आया और वहाँ पे मैंने अपना इंटरमीडिएट किया और फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, फिर मास्टर्स किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यूथ एक्टिविस्ट भी हूँ और सोसाइटी में एक अपना रोल दे रहा हूँ और एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ उसकी एक बहुत बड़ा किरदार, जो एक कलीदी किरदार है, वो रीड फाउंडेशन स्कूल का है, वहाँ के साथीज़ा है। क्योंकि जो एक नर्सरी होती है आपकी किसी भी स्टूडेंट्स की, वो 9th और मैट्रिक क्लास होती है, उसमें जो आपको ग्रूमिंग मिलती है और जो उसमें आप सीखते हैं वो आगे आपकी सारी ज़िंदगी चल के काम होती है। और वहाँ पे मैंने देखा ख़ास तौर पे जो सर ने बताया कि ऑर्फनेज, जो ऑर्फन बच्चे थे वो जो पढ़ रहे होते थे, और यकीन माने जो हमारे कोलीग्स होते थे जो ऑर्फन होते थे, हमें महसूस ही नहीं कभी होता था कि इनके शर्ट से लेके टाई से लेके जो सॉक्स तक के इंतजाम है वो रीड फाउंडेशन स्कूल कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक माशरे में कंट्रीब्यूशन है रीड फाउंडेशन स्कूल का। तो मैं अपने तमाम आपकी प्रोग्राम की मुनासबत से जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आएँ रीड फाउंडेशन स्कूल के इमदाद करें। और जो ऐसे कई लोग बच्चे हैं जो हमारी इमदाद का और हमारी नज़र के क्या कह रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत जो दास्तान जुड़ी हुई है रीड फाउंडेशन से, वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों का और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ का और मुख्तलिफ राइटर्स का इससे एक ताल्लुक़ है। मुख्तार मसूद साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। आवाज़ दोस्त जिन्होंने लिखी, लौहे अय्याम जिन्होंने लिखी, सफ़र नसीब जिन्होंने लिखी, क्या शानदार इसकी इकरार भाई हुसैन हक्कानी साहब जी। इसके पस मंजर में ये था कि मुख्तसर ज़रा ट्रिब्यूट बहुत हमारे पास जब हमने इस काम को शुरू किया तो 374 ऑर्फन्स हमारे पास आ गए। तो हमारे उनके यहाँ स्पॉन्सरशिप का कोई इंतजाम नहीं था। हमारे जो रीड के चेयरमैन थे ना, वो लेके सारे फॉर्म
लेके चले गए अकानी साहब के पास। दफ्तर उनके। हाँ, तो अकानी साहब 8 साल तक रीड के काम को इंडोर्स करते रहे। वाह वाह। यानी हर रमजानुल मुबारक में कम से कम वो एक कॉलम रीड के लिए लिखा करते थे। और ये बताते हैं कि जब रीड का कॉलम छपता था उसके बाद फोन उठाने के लिए लोग खत्म हो जाते थे, इतनी घंटियां। आप यकीन जाने कि 6 महीने तक हमें वो 372 बच्चे स्पॉन्सर नहीं हुए, लेकिन जब हकानी साहब ने कॉलम लिखा ना तो एक ही दिन में सारे बच्चे स्पॉन्सर। यार क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तो भाई अब वो नहीं है, लेकिन अल्लाह तरीके रहमत करे। क्या तो उसी से फिर मुख्तार मसूद साहब हमारे पास आए, माशाल्लाह आजकल जावेद चौधरी साहब, आप लोग सारे दोस्त। मुख्तार मसूद साहब ने तो एक स्कूल शायद स्पॉन्सर जी किया। वो चौकी में, वो भी एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है। मुख्तार मसूद साहब ने ये कहा जी कि मैं अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपके इदारे में लगाना चाहता हूँ, जितनी आप। और हमने कहा हमारा मॉडल ये है कि हम अपना जो ज़मीन है वो हमें कम्युनिटी डोनेट करती है। हमने उनको बताया कि ये हमारी ज़मीन है, तो उन्होंने कहा जी मैं चौकी में बनाऊँगा। अच्छा। तो हमने कहा ये बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे क्यों बनाएगा? तो उन्होंने कहा जी मेरे दादा जो अपनी यादाश्तों में लिखा है कि वो जब जम्मू से हिजरत करके आए तो एक रात उन्होंने चौकी समानी में गुजारा था। अच्छा। और चौकी वालों ने उनकी बड़ी खिदमत की थी। ओहो वाह वाह। तो वो फिर उन्होंने तकरीबन 1400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे इस वक्त हमारे माशाल्लाह उस तालीमी इदारे में। क्या बात है। आज आप देखें मुख्तार, फिर वो शायद इनॉग्रेशन पे आए थे और उसके बाद इनॉग्रेशन पे आए, उन्होंने कहा किसी को नहीं बताना है। और वो हमारे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उनके पास उन्होंने ना कम्युनिटी को बताया, ना हमें बताया, ना बच्चों को बुलाया। वो छुट्टी का दिन था, संडे था, और उन्होंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और वापस आ गए। क्या वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मुख्तार मसूद साहब और अकानी साहब और ये हमारे आप कह सकते हैं मोहसिनीन है, जब तक रीड फाउंडेशन चलता रहेगा। और ये दोनों साहिबान दुनिया में नहीं है इस वक्त, हम चाहते हैं कि उनके लिए बहुत दुआ की जाए। ऐसे शानदार हमारा और रुतबा तो उतना नहीं है, ये बड़े लोग थे, लेकिन हम भी अपने तौर पे जो हो सके इंशाल्लाह साथ हैं आप लोगों के। आपकी इंशाल्लाह। सर बस आखिर में ये बता दीजिए कैसे सपोर्ट किया जा सकता है रीड फाउंडेशन को, और ये हमारी मुकम्मल एंडोर्समेंट के साथ हम काम देख कर आए हैं, मैं भी वसीम भाई भी, कि आपके पैसे इससे ज़्यादा मर्तबा देख कर इससे बेहतर जगह शायद ही कहीं और लग सकते हो रीड फाउंडेशन। उसमें इकरार भाई एक तो ये है कि जो हमारे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क पाकिस्तान तकरीबन 1 करोड़ लोग बैरून मुल्क में है, पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान में भी तकरीबन इतने ही लोग चैरिटी करते हैं। अगर उन सब का फोकस तालीम बन जाए ना जी, और वो देखिए एक फ़र्द को 30,000 रुपये या 40,000 रुपये या 45,000 रुपये सालाना, उसके लिए कोई इशू नहीं। इसको मंथली डिवाइड कर लीजिए, कुछ 2-2.5 रुपये शायद। लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकता, वो अगर रोज़ाना अपने सर क्या 1 करोड़ आदमी या 1 लाख आदमी सिर्फ माना 100 रुपये भी रीड फाउंडेशन को देना, तो हमारे जो इस वक्त तालीमी इदारे हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी, इवन हम कराची में एक्सपेंड कर रहे हैं। कराची मुझे बताया ये सोराब गोट में हमने एक इदारा शुरू कर रहे हैं, KP में शुरू कर रहे हैं, बाकी जगहों पे शुरू कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा काम है जो सदका जारिया का एक ऐसा काम है जो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ना खत्म होने वाला काम, तालीम का काम। इस काम के अंदर जितना लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम पूरे अमीन होने की हैसियत से उनके जी बिल्कुल, अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे आपको, बड़ी मेहरबानी, और आपकी आपके साथ हैं तरक्की के लिए, कामरानी के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको सलामत भी रखे, और इसी तरह से आप रीड के एम्बेसडर भी बनते रहें, और एक एग्जाम्पल हो रीड के बच्चों के लिए भी और इस इदारे के लिए। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो बहुत नवाजिश है, बहुत शुक्रिया आने का, और अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। रीड फाउंडेशन बहुत भरपूर हौसला अफजाई होनी चाहिए, और वो तमाम तर लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जिनकी वजह से रीड फाउंडेशन खड़ा है अपने मकाम पे, और इसको इंशाल्लाह बहुत आगे लेकर जाना है, उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं। और मैं चाहूँगा एक दफ़ा भरपूर तालियां उन तमाम डोनर्स के लिए भी करें, चाहे किसी ने 100 रुपये देकर या करोड़ रुपया देकर इस इदारे की मदद की। और इस पे हम बारहा बात कर चुके कि आपके अतियात और सब चीज़ें तो गैर एप्लीकेबल हैं, लेकिन उलमाए कराम के मुतफ़क्का फतावा मौजूद है कि आप तालीम पर ज़कात खर्च कर सकते हैं। तो रमज़ान मुबारक है, ज़ाहिर बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं, तो बेहतर है कि आप इस सिलसिले में अपनी ज़कात को ज़रूर कंसिडर करें इंशाअल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, और ज़रूर आप इनके काम को सराहिएगा भी और अपने तौर पर मदद भी कीजिएगा इंशाअल्लाह। एक वफ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।